آج ماہ ذوالحج کا وہ آخری اور عظیم الشان جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے کہ جس کے فوراً بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ آج 26 ذوالحج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس لیے اگلا جمعہ جو آئے گا وہ نئے اسلامی سال میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سال کا آخری جمعہ ایک ایسا نایاب اور قیمتی موقع ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اگر وہ آج کے دن سورہ کوثر اور استغفار کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک نئے اسلامی سال کے آنے سے پہلے ہی اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ زندگی میں بہت جلد خوشحالی چاہتے ہیں، تنگیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور پورا سال کروڑوں کا رزق اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بڑے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، کیونکہ یہ عمل جہاں نئے اسلامی سال کا استقبال ہے، وہاں آخری جمعۃ المبارک کا ایک عظیم شان وظیفہ بھی ہے۔ اس خاص عمل کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پر شامل ہیں جن کا ملاپ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک سورہ کوثر انا آتینوک اور دوسرا استغفار۔ جمعۃ المبارک کا دن عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اور مرتبے کے لحاظ سے اتنا بلند ہے کہ ہفتے کا کوئی دوسرا دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے اس دن کی عظمت کو دل سے سمجھنا ہے اور اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ہر مسلمان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا رحمتیں چھپا رکھی ہیں اور کیسے کیسے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ آرزو اور خواہش انگڑائی لیتی ہے کہ آنے والا سال میرے لیے، میری اولاد کے لیے اور میرے خاندان کے لیے بہت بابرکت ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال رحمتوں والا، عظمتوں والا، امن و سلامتی والا اور خوشحالی والا ہو۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ آج کے دن پورے دھیان کے ساتھ سورہ کوثر کا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ محرم الحرام کی برکتوں سے اس بندے کو مالا مال فرما دیں گے۔ اس بندے کے لیے آنے والا پورا سال بڑا ہی بہترین اور مبارک ثابت ہوگا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ عظمت کا، برکت کا، عبادت کا، تقوی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بھی اللہ پاک کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور چونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو اس دن میں بھی بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو سچے دل سے کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں فوراً چھم چھم کر کے اس بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس عمل کی کئی ایسی حیرت انگیز برکتیں ہم نے خود دیکھی ہیں اور کئی سچے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگوں کو جو یہ عمل کرتے ہیں مالال ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو ایک مرتبہ اچھی طرح سمجھ لے، پھر اس کو اسے اسی ترتیب کے ساتھ کر لے اور الحمدللہ وہ شخص خود دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کے اوپر کرم فرما دیا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کی برکتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ عمل کا وقت اور وظیفے کی بنیادی شرائط، اب آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج جمعہ کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس عمل کو صبح 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے یا جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز کے بعد، عصر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم، غرض یہ کہ پورے دن میں کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کے اندر 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ ایک تو عمل کی تعداد اور اس کی ترتیب۔ جو چیز آپ کو پہلے بتائی جائے اسے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور جس تعداد میں بتائی جائے اس کے برابر پڑھنا ہے، یعنی نہ تعداد کم ہو اور نہ زیادہ، آپ نے اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ عمل کے دوران جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی بھی شخص سے کوئی کلام یا گفتگو نہیں کرنی۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے، بہت مختصر بھی ہے، لیکن اگر طاقت اور تاثیر اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے طویل اعمال بھی اس مبارک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جو خاص دنوں کے اور خاص وقت کے اعمال ہوتے ہیں نا، ان کی ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار دن ہے جسے اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے یوم عید اور مغفرت کا دن ہے جس میں خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتار گیا، اور اسی جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اس دن میں غسل کرتا ہے، پاکیزہ لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، اور خواتین جو گھروں میں رہ کر عبادت کرتی ہیں، اور جو کوئی بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔
अहादीस मुबारका में आता है कि इस दिन की अदायगी गरीबों का हज है और नेकियों में सबकत ले जाने का जरिया करार दिया गया है। इस दिन अजर व सवाब का ऐसा अनोखा निज़ाम होता है कि मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते खड़े होते हैं। उनके हाथों में सोने के कलम और चांदी के वरक होते हैं और वो मस्जिद में आने वालों के नाम लिख रहे होते हैं। इसलिए ये दिन अज़मत के एतबार से ऐसा है कि उसका कोई दूसरा दिन मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर इस दिन के अमल का भी कोई दूसरा अमल मुकाबला कैसे कर सकता है? अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से सारी कायनात पैदा फरमाई है और अपनी हिकमत से बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फोकियत दी है। अल्लाह ने 7 दिन बनाए हैं और इन 7 दिनों में जिस दिन को सबसे ज़्यादा अज़मत दी वो जुम्मा का दिन है। फिर अल्लाह ताला ने इस दिन की मुनासबत से कुरान मजीद में एक पूरी सूरत का नज़ूल फरमाया है और इस सूरत का नाम भी सूरतुल जुमा रखा है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी 4 ख़ास सिफ़तें बयान फरमाई हैं। वो कौन सी हैं? पहली सिफ़त है अल मिल्क यानी बादशाह, हकीकी और दायमी बादशाह जिसकी बादशाहत पर कभी ज़वाल नहीं आता। दूसरी सिफ़त है अल कुर्दूस यानी हर ईब और नुक्स से पाक ज़ात। तीसरी सिफ़त है अल अज़ीज़ यानी वो ज़ात जो गालिब है, जो चाहती है करती है और किसी की मोहताज नहीं बल्कि सारी कायनात उसकी मोहताज है। और चौथी सिफ़त है अल हकीम यानी हिकमत वाला जिसका हर फैसला और हर काम हिकमत मबनी होता है। इसलिए इस दिन की जितनी भी शान बयान की जाए वो कम है। अलगर्ज़ अब हम अपने असल अमल की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है और दरूद पाक पढ़ना है। वही दरूद पाक जो हम अपनी नमाज के अंदर पढ़ते हैं यानी दरूद इब्राहीमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। चूँकि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं इसलिए आपने इस दरूद पाक को फ़कत 7 बार पढ़ना है क्योंकि पलट कर यही 7 वापस आते हैं। जब आप 7 बार दरूद पाक पढ़ लें तो दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सूरतुल इखलास की तलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। देखें ये सूरा मुबारका जो है ना, ये बज़ाहिर एक छोटी सी सूरत है लेकिन ये ऐसी सी सूरत है जो पूरे कुरान की तिहाई के बराबर है, यानी एक तिहाई कुरान का सवाब इसमें छपा है। जी हाँ, ये वो अजीम सूरत है जिसकी फजीलत के हैरान कुन वाक़ात तारीख़ में मौजूद हैं और इसको पढ़ने के रूहानी और मादी बेहिसाब फ़ायदे हैं। वो राज जो आपकी ज़िंदगी को अक्सर बदल सकता है, आज वो राज मैं आपको बताने लगा हूँ, इसलिए आपने इस मवाद को मुकम्मल देखना और समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ख़ास वजीफ़ा है और एक राज की बात है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ये वो सूरत जिसकी से बड़ी फजीलत बयान करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किस्म है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये सूरत कुरान करीम के 1/3 के बराबर है। जो शख्स उसे 3 बार पढ़ता है इसे पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन आज के इस आखिरी जमे के दिन जो शख्स उसे 1 बार पढ़ेगा अल्लाह के फजल से उसको 70 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के लिए जन्नत में एक आलीशान घर बनाते हैं। सोचिए सिर्फ चंद सीकिन की तलावत और उसके बदले में जन्नत में घर, तो उसकी उज़्मत का अंदाजा फिर कौन लगा सकता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस सूरत के पढ़ने से बंदा शैतान के शर और उसके वसूसों से भी महफूज रहता है। दिल को एक अनोखा सुकून मिलता है, हर किस्म का खौफ और परेशानी दूर होती है। ये सूरत इंसान के लिए एक रूहानी ढाल है और रिज़्क में बरकत का सबसे बड़ा राज है। ये मोहब्बत पैदा करने और दलों को जोड़ने का बेहतरीन अमल है। इसको पढ़ने का तरीका बड़ा आसान है कि पहली मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद बगैर बिस्मिल्लाह के इस सूरत को पढ़ना है। इस सूरत की बरकत का एक वाक़या सुने कि एक शख्स बहुत गरीब था और हमेशा माली तौर पर परेशान रहता था। किसी नेक अल्लाह वाले ने उसे मशवरा दिया कि तुम उठते बैठते सूरतुल इखलास को पढ़ा करो। इस गरीब शख्स ने उस सूरत को अपना वजीफ़ा बना लिया और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही अरसे में उसके हालात बदल गए, उसके रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए, दिल को इत्मीनान और सुकून आ गया। इसकी तमाम मुश्किलात फ़ौरन ख़त्म हो गईं और रिज़्क़ में ऐसा बेतहाशा इजाफा हुआ कि दौलत को संभालना इसके लिए मुश्किल हो गया। इंशाअल्लाह जो कोई भी आज के दिन इसे पढ़ेगा इसे हैरान किन नताइज मिलेंगे। हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स इस सूरत से मोहब्बत करता है और उसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी कब्र को भी रोशन फरमाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो इसका वर्द रखता है उसे मुआशरे और आखिरत में ख़ास मकाम मिलता है। अल्लाह की रहमत हर वक्त उसके शामिल हाल रहती है। जो सूरत कुरान पाक की 1/3 के बराबर हो, जन्नत में घर दिलाए, हिफाजत और सुकून दे और रिज़्क़ में बरकत लाए, उससे बढ़कर एक इंसान को और क्या इनाम चाहिए। एक सहाबी मस्जिद में बार बार हर नमाज की हर रकत में यही सूरत पढ़ते थे। लोगों ने उनसे कहा कि तुम बार बार यही एक सूरत क्यों पढ़ते हो। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस सूरत से सच्ची मोहब्बत है। ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि इस सूरत की मोहब्बत ही
तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक सूरत की मोहब्बत इंसान को जन्नत में ले जाती है। जिस जन्नत में जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सूरत पढ़ने वाला जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें खौफनाक ख्वाब आते हैं, इस सूरत के पढ़ने से वो खौफनाक ख्वाब भी आना ख़त्म हो जाते हैं। कारोबार में दिन दगनी रात चुगनी तरक्की आती है। घरेलू परेशानियां और आपस के लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। जो शख्स अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहता है, जो खुद को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब देखना चाहता है, जो बीवी अपने शोहर को कामयाब देखना चाहती है, जो बहन अपने भाई को कामयाब देखना चाहती है, वो इस अमल को ज़रूर करे। अगर आप इस अमल को पढ़ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास इनामात और अनवार व तजलियात आपके ऊपर बरसने लग जाते हैं। आज के दिन इस सूरा मुबारका को आपने फ़कत एतल बार पढ़ना है। जब आप एतल बार सूरतुल इखलास पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर अपने दिल में ये तसव्वुर रखना है कि ए मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मुझसे ज़िंदगी में अब तक जितनी भी ख़ताएँ हो चुकी हैं, मुझसे जितने भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उन सबको माफ़ फरमा दे। अब आपने गुनाहों से तौबा वाले कलमात पढ़ने हैं, और ये तस्बीह कितनी बार पढ़नी है इसको भी ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए और सुन लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप जो अमल करने जा रहे हैं ये कोई आम अमल नहीं है और ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, बल्कि ये ताकत के एतबार से आपको खुद ही अंदाज़ा करवा देगा कि आप जो तस्बीह पढ़ रहे हैं ये वो ख़ास अमल है जिसका वर्द करने वाला अल्लाह की ज़ात से हर वो चीज़ हासिल कर लेता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। यानी इस अमल की बदौलत तारीख़ में जिसने जो कुछ मांगा है, रब्बे कायनात ने इसे इता फरमा दिया है। बस सादा सी बात है, जिसको ये बात समझ आ गई वो कभी भी इस अमल को छोड़ेगा नहीं, और जिसको ये बात समझ ना आई वो शायद इस अमल की बरकतों से महरूम रह जाए। मैं कहता हूँ वो लोग बड़े मुक़द्दर वाले होंगे, बड़ी अच्छी किस्मत वाले होंगे जो आज के इस आखिरी जमे को इस अमल को पढ़ेंगे और अल्लाह के अनवार व तजलियात हासिल करेंगे, क्योंकि ये अमल पढ़ने वाले को अल्लाह की ख़ास रहमत और इसका कुर्ब हासिल होता है। बंदे को मरफत नसीब हो जाती है और रहमत अल्लाह ही उसके ऊपर बरसने लग जाती है। अब चूँ आपने ये ख़ास कलमात पढ़ने हैं, इन कलमात के पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। देखें, उलमा फरमाते हैं कि सच्ची तौबा की चंद बुनियादी शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि गुनाह को फ़ौरन छोड़ दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि दिल में अस गुनाह पर सच्ची नदामत और शर्मंदगी हो, और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा ज़िंदगी में वो गुनाह ना करने का पक्का और सच्चा अहद किया जाए। और अगर वो गुनाह हुकूकुल इबाद इंसानों के हुकूक के मुतालिक हो तो जिसका हक मारा है उसका हक वापस कर दिया जाए। तौबा इंसान के दिल के जंग को साफ करती है। गुनाह इंसान के दिल को और तारीक कर देते हैं, जबकि तौबा इसे धोती है और चमकाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल चमक जाए, आपके तमाम गम दूर हो जाएं, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएं, आपकी ज़िंदगी के बंद रास्ते खुल जाएं, आपका रिज़्क बढ़ जाए, आसमान से बाराने रहमत नाजिल हो, आपके माल और औलाद में इजाफा हो, दिल में नरमी पैदा हो, आंखों में खुशू आए, इबादत में लज़्ज़त आने लगे और गुनाहों से तुम्हें सच्ची नफ़रत हो जाए, तो इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। शैतान की ये बड़ी चाल होती है कि वो बंदे को गुनाह करवाने के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि कभी भी मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। इसलिए सच्ची तौबा की खासियत यह है कि पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग लें और आइंदा गुनाह ना करने का ओहद कर लें। इससे नामा आमाल भी पाक हो जाता है और इंसान की एक नई पाकीज़ा ज़िंदगी का आगाज़ भी हो जाता है। आपने तौबा के उन कलमात को फ़कत मर्तबा यानी एक पूरी तस्बीह पढ़ना है। वो कलमात ये हैं: अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इन कलमात का मतलब है, ए अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मालिक मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। जब आप इस सच्चे तसव्वुर के साथ ये तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशा अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, चाहे वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने पर पूरी कुदरत रखता है। जो शख्स ये पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसके गिर्द रहमत का एक हल्का बना दिया जाता है और इस पर ख़ास किस्म के अनवार उतरते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है, जो मखलूक की मोहताजी से बेनियाज होना चाहता है और जो अपनी इबादत में इखलास हासिल करना चाहता है, वो इस्तिग़फ़ार को पढ़ ले तो इसके अंदर से हसद ख़त्म हो जाएगा, खौफ ख़त्म हो जाएगा, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इनामात इसको मिलेंगे। एंड अल्लाह के सिफ़ाती नामों का वर्द, रिज़्क़ की तस्बीहात जब आप ये कलमात पढ़ लें और ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीह मुकम्मल कर लें, तो अब उसके बाद आगे जो कलमात आपने पढ़ने हैं और जो तस्बीहात करनी है उन्हें ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब आपने सूरत भी पढ़ ली, इस्तिग़फ़ार भी कर लिया। अब उसके बाद आपने अल्लाह ताला से डायरेक्ट रिज़्क़ मांगना है कि मालिक तो मुझे गैब से बेहिसाब रिज़्क़ अता कर, क्योंकि रिज़्क़ देने वाली वाहिद ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की है और जो कोई भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रिज़्क़ मांगता है, अल्लाह ताला उसे वहाँ से अता करता है।
जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। ये अमल पढ़ने के बाद कहते हैं कि बंदा रिज़्क़ मांगे या ना मांगे, अल्लाह ताला तब भी उसे बेहिसाब अता करता है। यानी जो शख्स चाहता है कि मुझे बगैर मांगे अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिले, तो वो लोग भी इस अमल को आज के दिन एक मर्तबा पढ़कर ज़रूर देखें। चूँकि आज जमातुल मुबारक का दिन माह ज़वाल हज्जा का आखिरी जुमा है, इसलिए इस मुबारक मौका पर हमारी एक खुसूसी दुआ भी होगी। जो लोग भी इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, वो फ़कत वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। इंशाअल्लाह इनको खुसूसी दुआओं में शामिल किया जाएगा। अगर आपका कोई ख़ास मकसद या हाजत हो तो आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते तो आप फ़कत ये कह दें कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम बारगाह इलाही में कहेंगे कि मौलिक, जो बंदा जिस हाजत के लिए भी दुआ गो है, तो अपने करम से उसकी उस हाजत को पूरा फरमा। आप यकीन जानें, आने वाले नए इस्लामी साल के हवाले से भी खुसूसी दुआ की जाएगी कि अल्लाह पाक सबके लिए वो साल मुबारक करे, सब की मुश्किलें आसान हों, और जो कुछ उनको को उससे पिछले सालों में नहीं मिल सका, इस नए साल में अल्लाह ताला उनके मुकद्दर में कर दे और उन्हें अता फरमा दे। जिनकी शादियों के मसाइल हैं, उनके रिश्तों की रुकावटें हल हो जाएं। जिनके कारोबारी मसाइल हैं, उनके कारोबार चमक जाएं। जिनको औलाद का मसला है, उनको नेक और सालेह औलाद अता हो जाए। और जो लोग अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, उनकी औलाद उनके लिए आंखों का नूर और दिल का सुकून बन जाए। अब आपने अल्लाह पाक का पहला सिफाती नाम पढ़ना है, यास्कास। अल्लाह ताला के मुबारक अस्माउल हुस्ना में से ये एक इंतहाई अजीम नाम है, जिसके मानी है बेहिसाब रुज़्क़ अता करने वाला। अल्लाह ताला ही वो वाहिद ज़ात है जो कायनात की हर छोटी बड़ी मखलूक को रिज़्क़ देती है, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो, पत्थर में हो या आसमान के नीचे हो। इंसान का रिज़्क़ सिर्फ माल और दौलत और पैसा नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत, दिल का सुकून, नेक औलाद, इज़्ज़त और ईमान भी रिज़्क़ ही की मुख्तलिफ और बेहतरीन सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्क़ देने वाला है, क़ुव्वत वाला और मजबूत है। इस नाम का वर्द बंदे के दिल में अल्लाह पर तोकल और भरोसा पैदा कर देता है। जब इंसान का ये यकीन पक्का हो जाता है ना कि रिज़्क़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो वो हराम रास्तों से बचता है और हलाल पर कनात करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी जिंदगी में मायूस नहीं होता। उलमा के मुताबिक इस नाम की तलावत करने से रिज़्क़ में वसअत आती है, माल में बरकत पैदा होती है, और जो शख्स इसको बाकायदगी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके लिए गैब से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। इसके दिल को सुकून नसीब होगा और रिज़्क़ की फ़िक्र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बंदा जान लेता है कि जो कुछ मुझे मिलना है मेरे रब ने ही अता करना है। रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी मेहनत करके देखें, इस अमल को करें और नतीजा फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, क्योंकि शुक्र करने से रिज़्क़ बढ़ता है और हराम रिज़्क़ ज़िंदगी से बरकत को उड़ा देता है। इसलिए ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है या रिज़ाक, बल्कि ये तोकल और यकीन की वो ताकत है। जो शख्स इस मुबारक नाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़, दिल और ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमा देता है। आपने इस इसमें मुबारक या रज़ाक को भी फ़कत 100 बार पढ़ना है, यानी उसकी भी एक पूरी तस्बीह करनी है। उसके बाद अब आपने अल्लाह पाक का दूसरा सिफाती नाम पढ़ना है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू। या वहाब का मतलब है बहुत ज़्यादा देने वाला, बग़ैर किसी अवज़ के अता करने वाला। इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला बंदे को इतना अता करता है कि इंसान के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, और कहते हैं कि इस बंदे के घर में रिज़्क़ और नियामतें रखने की जगह कम पड़ जाती है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान पर ऐसे कठिन मसाइल आ जाते हैं जिनका बज़ाहिर कोई हल नज़र नहीं आता, जैसे रिश्तों में बंदिश और रुकावट हो जाती है, इम्तिहान में बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है, अदालतों में मुकद्दमात और झगड़े गले पड़ जाते हैं, या इंसान कर्ज और घरेलू परेशानियों के दिल में फंस जाता है। ऐसे सख्त वक्त में हमें इस मुबारक ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की शदीद ज़रूरत होती है। कभी कभी इंसान का दिल अचानक घबराहट का शिकार हो जाता है, वो मायूसी और खौफ की गिरफ्त में आ जाता है, या ज़िंदगी से बेसुकूनी ख़त्म नहीं होती। तो इंसान को उन रूहानी मौक़ों से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस ज़िक्र के ज़रिए इंसान के जहन खुल जाते हैं, उलझी हुई बातें समझ में आने लगती हैं और याददाश्त बेहतर होती है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उस नाम के वजीफ़े के ज़रिए इल्म के, रिज़्क़ के और कामयाबी के ऐसे दरवाज़े खुलते हैं जिनका इंसान अपनी अक्ल से तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप मक़रूज़ हैं तो गैब से कर्ज़ा उतर जाएगा, तमाम माली रुकावटें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा और आपकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल होने लग जाएंगी। वो सब कुछ जो आपको शायद सारी ज़िंदगी की कोशिश से नहीं मिल सका, इस ज़िक्र की बदौलत अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। इस इसमें मुबारक या वहाबू को भी आपने फ़कत 100 बार पढ़ना है, यानी उसकी भी
एक तस्बीह पूरी करनी है। इस्माए हुस्ना का ये जिक्र मुकम्मल करने के बाद अब आगे आपने कुरान करीम की इस अजीम और मुबारक सूरत को पढ़ना है, जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था कि इसको हमने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। ये सूरा मुबारका सूरत अल कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिक वानहर इन्न शानियक हुवल अब्तर। देखने में और पढ़ने में ये सूरत पूरे कुरान पाक की सबसे मुख्तसर और बड़ी ही आसान सी सूरत है, लेकिन अगर ताकत, तासीर और जलाल के एतबार से देखा जाए तो इस सूरत का कोई भी दूसरी सूरत मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब चूंकि आज जुमा का दिन है, आपने जुमा अज़मत को सामने रखना है, जुमा की शान को समझना है, और जैसा कि मैंने पूरा पैगाम और तरीक़ाकार आप तक पहुँचाया है उस पर अमल करना है। आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि आगे हमने अपने इस चैनल पे चांद रात के हवाले से भी मुख्तलिफ बासर अमाल की वीडियोज़ अपलोड करनी है, लेकिन आज का ये अमल ख़ास तौर पर इसलिए अहम था क्योंकि इसके बाद ये दिन और ये साल का आखिरी मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर आप चांद रात के अमाल की वीडियोज़ देख सकते हैं, जिनमें से एक दो वीडियोज़ मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं और मज़ीद बड़े बड़े मुजरब आमाल आप तक पहुँचाने आ रहा हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में हमें भी याद रखें। हम भी इंशाअल्लाह अपनी इन दुआओं में आपको ज़रूर याद रखेंगे। अब इस सूरतुल कौस को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आपने इसे हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी जब भी सूरत शुरू करें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर पूरी सूरत पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब होता है मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। जब आप हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके ऊपर बार अपना फजल और अपनी ख़ास रहमत फरमाएगी, क्योंकि उस एक जुमले के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी रबूबियत और उसकी बेपनाह रहमत का अजीम बयान मौजूद है। तो आपने हर बार जितनी तादाद में बता रहा हूँ हर मर्तबा बस्मिल्लाह के साथ ही उस सूरत को पढ़ना है, क्योंकि उसके रूहानी फ़ायदे बहुत बड़े हैं। बस्मिल्लाह पढ़ने से दिल को फौरी सुकून मिलता है, रिज़्क और माल में बरकत आती है, हर बड़ी मुसीबत और आजमाइश में अल्लाह की तरफ से आसानी पैदा होती है और इंसान नजर बद, जादू टूने और शैतानी वसवसों से महफूज हो जाता है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को भी छोटी उम्र में ही ये सूरतें और बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालें। ये अच्छी आदत उनके अमाल को नेकी की तरफ ले जाएगी और उनके आने वाले मुस्तकबिल में बरकत पैदा कर देगी। जो शख्स अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करता है, इसके तमाम काम अल्लाह के सपर्द हो जाते हैं, क्योंकि ये अमल हमें ये एहसास दिलाता है कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ़ और अल्लाह के भरोसे पर करते हैं। आज के दिन आपने इस सूरतुल कौसर को मकल 41 बार हर बार बिस्मिल्लाह के साथ तलावत करना है। जब आपकी 41 बार तलावत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने आखिर में दोबारा 7 मरतबा वही नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। जब ये पूरा अमल उसी तरतीब और तादाद के साथ मुकम्मल हो जाए तो फिर अपने हाथ अल्लाह के हुजूर उठा लें, अपनी आंखें बंद करें, दिल में आजिज़ी पैदा करें और गड़गड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, नए साल की खुशहाली की दुआ करें और अपनी तमाम जायज़ हाजात अल्लाह के सामने रख दें। इंशाअल्लाह इस आखिरी जमे और इस ताकतवर वजीफ़े की बबरकत से आपकी हर दुआ कबूल होगी।